Hi friends, I Santosh welcome once again all of you on my channel. And in order to making all those videos, today's topic is atom. And atom is very important topic. In 1766, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे जॉन डॉल्टन. He has given the Dalton atomic theory. एंड देन आफ्टर थॉमसन ने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, बोर ने दिया. सो बट इन सबों का एक निचोड़ ये है कि all the matters in this universe, whether it is an element, compound or mixture, all are made up with the smallest particle, and that smallest particle is atom. Right? तो एटम पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने, जैसे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, इन सब ने अपना अपना एक अलग अलग एक्सप्लेनेशन किया. जो बट द मोस्ट सक्सेसफुल वन वाज बोर्स एटॉमिक मॉडल. एंड इफ यू आस्क अबाउट द रदरफोर्ड थॉमसन्स मॉडल, वी विल डिस्कस ऑल दोज आल्सो. वी विल मेक द सेपरेट वीडियो फॉर दैट आल्सो. बट टुडे वी आर डिस्कसिंग बोर्स एटॉमिक model, right? This is most relevant one, that is why I am discussing this one. Bohr ने बताया कि the atom is made up of three constituents, and in the nucleus of this atom, this is nucleus, in the nucleus of the atom, proton and neutrons are present, right? And electrons are moving on different shells, right? This is nucleus, and number 1 cell, this is number 2 cell, this is number 3 cells, this is number 4 cells. This is how electrons move on different paths. The first one, this is called A shell, right? This is called L shell, M shell, N shell, right? So on. So electrons moves on different shells, and these are called the shells number K, L, M, N. This depends upon the atomic number of the element. Every element has their own atomic number, right? So these are the electrons moving on different cells. Proton or neutrons are in the nucleus. This is called nucleus of the atom. In the nucleus, proton or neutrons are present. Electrons moves on different paths, and these paths are K, L, M, N cells, right? So, proton is symbolized with P, neutron is symbolized with N, electron is symbolized with E. Proton has positive charge, electron has negative charge, and neutron has neutral, it is neutral, no charge at all, right? और इसका जो न्यूक्लियस मतलब एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है, दिस इज ऑलमोस्ट 10 to the -9 नैनोमीटर, 10 to the power -9 नैनोमीटर, इतना छोटा. दिस इज हाउ एटम इज. that is why this is called the smallest part of any substance, any matter, right? Now how electrons moves on the different cells. Suppose कोई भी एक एलिमेंट बताओ, जैसे मान लो सोडियम हम लेते हैं, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, राइट? नाउ एटॉमिक नंबर मीन्स वी symbolize atomic number with Z, right? So the Z of sodium is 11. And one more thing, whatever this atomic number will be the number of electron, and same as
प्रोटॉन, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही प्रोटॉन रहेगा इसमें, राइट? ओके बिकॉज इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों बराबर होना जरूरी है, नहीं तो अगर फिर उसमें आयन डेवलप होना शुरू हो जाएगा, वो आयन वी विल डिस्कस, राइट? सो ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, proton is positively charged, and whatever the number of electron and proton would be the number of the atomic number of that particular element. So suppose carbon has 6 atomic number, it means the number of electrons in the carbon is 6 and the number of protons in the carbon is 6 as well, ठीक है? 6 And next thing, I told you that suppose this is an atom, this is nucleus. In the nucleus it is proton and neutron. So this is called atomic mass. ठीक है? तो mass is equal to atomic mass का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? P plus N. मतलब number of proton plus number of neutron is the atomic mass of that element, right? अगर P नहीं रहेगा, P के जगह पे यू कैन डिनोट P प्लस N और Z प्लस N equals to, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट. अगर कोई बोलेगा इफ एन एलिमेंट हैज द एटॉमिक मास 50, राइट, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 30, तो उसका एटॉमिक नंबर बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 50 minus 30, 20. दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दैट. अच्छा, अब है बोर ने बताया कि इसमें जो एटॉमिक नंबर है, आई हैव गिवन यू फार्मूला एंड दैट फार्मूला इज, व्हाट वाज द फार्मूला? 2n square. Have you heard it? Start. I have told you about that formula, and the number of electrons moves on the shells. Do you know the formula? Yes. 2n square. Yes. तो कोई भी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके लिए बोर ने बताया था 2n स्क्वायर. सपोज दिस इज एन एटम, ये न्यूक्लियस हो गया, दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज द सेकंड शेल, And this is the third and goes on and on. Fourth shell, right? This is nucleus. Plus This is K, L, M shell and N shell. N, right? तो K का हो गया number N. Then the number of electrons is equal to 2 into N square. 2 into N square. In 2 into 1 square means 2. यानी कि पहला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2. 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है. L हो गया 2 into 2 square means 8 इलेक्ट्रॉन, यानी L पर 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है. M 2 into 3 square यानी 18 रह सकता है, यहाँ पे 18 रह सकता है. N में कितना रहेगा? 2 into 4 square means 32. But when you arrange the electrons in the outermost electron, there is a mandatory that the maximum 8 electrons can be on the outermost orbitals, outermost shells. ठीक है? आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? 8. और जितने भी एलिमेंट हैं, 8 का मतलब होता है ऑक्टेट पूरा कर लेगा. सपोज सोडियम का इफ यू कंस्ट्रक्ट द सोडियम electronic configuration and chlorine electronic configuration, right? So the atomic number of sodium is 11 and chlorine is 17, right? So सोडियम का हो गया 11 और क्लोरीन का हो गया 17. तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे. अगर ये हो गया
nucleus, first shell, second second shell, Third shell and the third fourth shell. Just listen to me. This is nucleus. This is first cell, K shell. K shell में इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बताया था मैंने. यानी एक इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, राइट? दूसरा शेल पे कितना बताया था? 8. तो 8 यहाँ हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? 8 electrons are moving on the, this is K shell, this is L shell. अब बच कितना गया तुम्हारा? एक और बच रहा है. 8 यहाँ 2 यहाँ 10 हो गया. इसका मतलब एक और इलेक्ट्रॉन बच रहा है. एक इलेक्ट्रॉन कहेंगे ये. तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 electron. And similarly, if you construct the atomic configuration of chlorine, right? So this is nucleus. Sorry, neutron plus proton. First में हो गया इसमें कितना? 2. On the second one, usually 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, right? And इसमें आउटर मोस्ट में कितना हो गया? 8 2 10 7 और बच रहा है. Yes. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Now, if you mix sodium and chlorine together, अगर ये दोनों से रिएक्शन करवाते हैं, एक दूसरे को मिलाते हैं, then what happen? इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये चाहेगा कि हम यहाँ जाकर के 8 पूरा कर दें इसका, ठीक है? जिसमें ज्यादा, जैसे मान लो अगर 4 है, 4 फिक्स है, अगर 3 रहेगा तो 3 सोचेगा कि इधर चला जाए, तब ये बराबर हो जाएगा. ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, इसीलिए रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है. सो फॉर गेटिंग ऑक्टेट पा करके वो स्टेबल हो जाता है, राइट? वो स्थायी हो जाता है, उसको खाना पूरा हो गया, समझ लो, ठीक है? सो दिस इज हाउ द रिएक्शन हैपेंस. ये सभी, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया तो सोडियम का कितना था? 11 था. इसके आउटर मोस्ट में 1 था +1, और ये क्लोरीन से रिएक्शन कर लिया. इसके आउटर मोस्ट में कितना था? 7. अब इसमें से एक ये ले लिया तो इसका कितना हो गया? 8 हो गया. 8. और इसका हो गया 2 8, इसका हो गया 2 8 8, 2 8 2 8 8. अब दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया. इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट, और एक नया कंपाउंड बन गया, दैट इज MnA नंबर, ठीक है? सो दिस इज, और इसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है? इसी को वैलेंसी, इसका हो गया 1 हमने लिया तो इसका वैलेंसी हो गया 1. सो दिस इज व्हाट वैलेंसी इज. अब नाउ वी हैव कवर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसका मूवमेंट, उसका कैसे कैसे ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज, दूसरा जो चीज़ है पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक होता है, इसी में टॉपिक आता है आइसोटोप्स, और एक होता है आइसोबार्स. बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं कि देखो, एक सिंबोलिज्म होता है 1H1 1H2 1H3. इधर वाला जो होगा, दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज एटॉमिक मास, ठीक है? तो a lot of elements in the universe are in the form of isotopes, जिसमें इसका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट एटॉमिक मास अलग अलग होगा. यहाँ हाइड्रोजन है सेम, इसका एटॉमिक नंबर 1 1 1 बट एटॉमिक मास 1 2 3 है. सो दिस इज कॉल्ड आइसोटोप्स. आइसोटोप्स कौन हुआ? आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक मास अलग होगा. आइसोबार्स, अच्छा इसमें और भी एग्जांपल है, ये यू हैव टू लर्न दिस. 1H1 1H2 1H3, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स हो गया. उसी तरह से कार्बन का आइसोटोप्स है 17, ये क्लोरीन का लेते हैं 17 Cl35 17 Cl37, ये हो गया इसका तुम्हारा क्लोरीन का, राइट? कार्बन का भी होता है C6C12 और 6C14,
राइट ये सारे आइसोटोप्स क्या होगा जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा और एटॉमिक मास एटॉमिक मास डिफरेंट होगा एक डिफरेंट दूसरे डिफरेंट से. होगा। और सिमिलरली आइसोबार्स होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस उल्टा है, इसमें क्या होगा एटॉमिक Atomic मास mass सेम होगा, एटॉमिक नंबर number डिफरेंट different डिफरेंट होगा। होगा. लाइक अगर हम लोग लेते हैं 20 कैल्शियम 40 और 18 ऑर्गन 40, इसमें एटॉमिक नंबर कैल्शियम का और आर्गन का दोनों का क्या है सेम है, लेकिन एलिमेंट दोनों अलग अलग है। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब इसका क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। अब इसमें डिफरेंट आइसोटोप्स के क्या फायदे हैं, क्या 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 चीज़ें हैं, वो स्पेसिफिक्स मैं बता दूंगा, राइट। सो दिस इज व्हाट टुडेज टॉपिक इज, दिस इज व्हाट द एटम्स आर। और बाकी डिटेल्स में इफ़ यू वांट द रदरफोर्ड थ्योरी, राइट, इफ़ यू वांट द डाल्टन एनालिसिस, you can comment on the video. I will put up all the descriptions, all the details in the next video. Thank you very much for watching this. If you like this video, please subscribe and follow my channel. Thank you very much.